Shreya, the recorded video is not available. We are trying to make you available, but we are recording here. We'll see how to give you. Okay, but as such, there is no provision to how to send this recorded file to you. But we are recording so that in future we can give it to you. Whenever it is possible, we'll give you the file. Okay. So students, now I think it is already delayed and मुझे भी बहुत सारा करना था, but ये joining के चक्कर में it is already very late. Okay, so now we can start the class. So we'll start with the syllabus of class 9, and here if you have your textbooks, 9th class textbook, please bring it on your table. Okay, जब तक हम class start कर रहे हैं, मैं 2 मिनट में class start करती हूँ. अगर आपके पास 9th की book है, please keep it in front of you. Keep a paper, make a copy of for NTSC, and whatever your classes that you observe, that you attend here, try to make all the notes there, because it is not possible to write everything on the board. We'll try, but if some points, if we just speak out also, then if you consider it as the important, you can write. Actually, the syllabus is very vast, and we are trying to complete the syllabus. So it is a type of a revision. Okay, so we are going to take which are the points which are already very important and which have come in the previous exams. Okay, जो पुराने exams में आया है, उन points को हम लेंगे, and the important points also. So will not cover the whole lesson. बट आपको क्या करना है, जैसे आपका लेसन होता जाता है, उसकी पूरी थियरी आपको साथ में पढ़ते जानी है ऑन द सेम इवनिंग और मॉर्निंग वॉट एवर, और उसमें से अगर आपको कोई पॉइंट्स मिलते हैं एंड इफ यू फील डिफिकल्टी यू कैन आस्क देयर. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर 5 ऑफ क्लास 9, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो सिंपली मैं यहाँ पे आपको सेल के बारे में बताऊंगी. ओके, एंड विल गो थ्रू ऑल द पॉइंट दैट वी हैव ऑलरेडी रेड. तो ये जल्दी जल्दी करेंगे सो दैट एक क्विक रिकैप होगा. आपको भी अगर कहीं पे डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, यू कैन आस्क. और हाँ बेटा, जो भी क्वेश्चन लिखोगे वो टाइप करके लिखना, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर काम नहीं कर रहा है. ओके, सो when I will get your answer question, then I will definitely try to answer it by speaking, right? Okay, so now we'll start with the chapter cell. So this is what this is 9, 11, 20. Okay, so the cell was first discovered by means it was first found out by a scientist, and the name of the scientist, can you name the scientist who has discovered the cell for the first time? सबसे पहले cell, who has observed cell for the first time? सबसे पहले cell को किन साइंटिस्ट ने देखा? जस्ट एक टाइप, अगर एक दो बच्चे आंसर दे देते तो दूसरे बच्चे प्लीज मत दो, ताकि क्योंकि बहुत सारे चैटिंग हो जाता है तो मैं सारे कमेंट्स नहीं देख पाऊंगी. मुझे तो बस आंसर चाहिए और सारे बच्चे, ताकि उस आंसर को देख पाए. ठीक है, सो आयुष, आस्का एंड हर्षिता, दे हैव, एंड नीचे वाले बच्चे भी, सुहानी गुप्ता, so they have written Robert Hooke. Okay, so Robert Hooke was a scientist who was able to observe cell for the first time, and he has observed the cell under a primitive microscope. Primitive microscope means a microscope which was self-designed by him only. Okay, and when he saw the cell, actually he was observing the cork of a tree. ठीक है, ट्री का कॉर्क कौन सा एरिया होता है? द आउटर मोस्ट एरिया, एंड जनरली इट इज जेड ऑल्सो. So he has taken cork and he has made one slide, and when he observed certain compartments, okay, compartment like structure, and he named it as cell or little room. Okay, so Robert Hooke ने अपने self designed microscope से सबसे पहले सेल को देखा. Now comes the next one, the next scientist, that is Antony van Leeuwenhoek. Okay, Antony van Leeuwenhoek, he has observed cell, the first live cell. ठीक है, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल ऑब्जर्व किया था वो डेड सेल था, जबकि एंटनी वैन लोएनहोइक ने जो सेल ऑब्जर्व किया था दैट वाज अ लाइव सेल. ओके, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है कि लाइव सेल किसने देखा था और डेड सेल किसने देखा था. ठीक है, तो आई एम ऑन पेज नंबर 58. ठीक है, आप पेज नंबर 58 है, बेटर यू कैन टेक, क्योंकि आप 9th क्लास पढ़ चुके हो,
तो आप एक मार्कर ले सकते हो, जो जो पॉइंट्स मैं बोलती जा रही हूँ आप उसको वहां पे अंडरलाइन कर सकते हो, सो दैट हमें ये जब भी हम रिवीजन करेंगे, ये भी एक तरह का रिवीजन है, वी कैन डू इट। ओके, सो यहाँ पे रॉबर्ट हुक का है, देन उसके बाद लुएन हुइक का, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे द नेक्स्ट साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम मेंशन है रॉबर्ट ब्राउन। ओके, सो रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस को, रॉबर्ट ब्राउन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है और उसको ऑब्जर्व किया, उसका नाम दिया रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। एंड इसके बाद आती है आपकी सेल थ्योरी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल थ्योरी के पॉइंट्स हैं कुछ जो ऐसे मतलब एसर्शन रीजन में भी आ सकते हैं, या दो पॉइंट्स लिख दिया तो ये बता सकते, ये भी पूछ सकते हैं कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ सेल थ्योरी और वन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर। ओके, so the two scientists, you have to name the two scientists who have given the cell theory, original cell theory जो है इन दो साइंटिस्ट ने दी थी। what is the name of the two scientists who gave the original cell theory? Yes, students type it. Yes, type. Yes, they are the two. Yes, very nice. Okay, so Shreya, Sheldon and Schwan, and I'm not going to read out the name of every student क्योंकि ये मेरे पास भी बहुत टाइम लिमिटेड है, ऑलरेडी हमने बहुत लेट स्टार्ट किया था, मुझे लगा था मैं 2 चैप्टर फिनिश कर दूंगी, बट आई थिंक अब तो मैं एक ही कर पाऊंगी। ओके, सो शेल्डन एंड श्वान, दे वर द टू साइंटिस्ट हु हैड फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी, ठीक है। ओके, नाउ सेल थियरी में आपको एक तो ये याद रखना है कि जो उसका फर्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल थियरी इज दैट all the cells, whether it is the cell of a plant or it is the cell of an animal, it is composed of cell. Okay, so cell theory जो है, cell theory शेल्डन एंड श्वान ने दी थी। ओके, एंड सेल थियरी का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट all the organisms have, they have cell. Okay, they have cell, they are made up of cell. Okay, and in the same so when we extend the cell theory, then comes the next point. ओके, सो मेन थियरी तो जो शेल्डन एंड श्वान ने दी थी कि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, वेदर ये सारे ऑर्गेनिजम्स में आके सारे प्लांट्स भी आएंगे एंड सारे एनिमल्स भी आएंगे, ठीक है। सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, एंड द सेकंड पॉइंट ऑफ सेल थियरी इज दैट cell is the basic structural and functional unit of life. Okay, so cell is the structural as well as functional unit of life. Okay, so these 2 points are covered in the cell theory, and the cell theory, it was examined and it was modified by addition of another point which was given by another scientist, and the name of the scientist is Rudolf Virchow. Okay, just write it. Okay, so इस cell theory को modify किया था Rudolf विर्चो ने। ओके, एंड ही एडेड वन मोर पॉइंट, एक पॉइंट इन्होंने और इसमें ऐड कर दिया था। ओके, दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। सो इन्होंने क्या पॉइंट बताया? दैट सेल्स अराइज फ्रॉम में नहीं लगा रही हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ, बहुत सारा काम करना है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, बिकॉज व्हेन द सेल थ्योरी वाज ओरिजिनली गिवन बाय शेल्डन एंड श्वान, तो जब हम कोई थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं, उसको किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो सर्टेन क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम बोथ ऑफ देम, फ्रॉम बोथ ऑफ द साइंटिस्ट, that okay, you are saying that all the cells arise from all the organisms are made up of cell, but where do the cells arise from? So they were unable to explain the answer for this कि जो सारे सेल्स अराइज हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। सो दे कुड नॉट एक्सप्लेन द explanation, they could not give the explanation how the cells arise. So यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो ने इस सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया, इसमें एक पॉइंट दिया कि सारे के सारे जो सेल्स हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल थियरी। ओके, नाउ आप उसके आगे वो करोगे,
व्हेन विल मूव, तो इसमें आपके शेप्स ऑफ द सेल्स दिए हुए हैं। शेप्स ऑफ द सेल्स में आपको याद रखना है कि जो आपका जैसे डायग्राम में दिया स्मूथ मसल सेल हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। ओके, देन ब्लड सेल्स कैसे होते हैं? ब्लड सेल्स राउंड होते हैं। ब्लड सेल के लिए एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आप उसका फ्रंट व्यू देखोगे इट इज राउंड और ओवल, एंड व्हेन यू सी द साइड व्यू, जब आप रेड ब्लड सेल का साइड व्यू देखोगे, सो इट इज बाई कॉन्केव फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों साइड से क्या है ये, दोनों ही साइड से ये बाई कॉन्केव है। इट मीन्स द it will appear that the cell is moving towards inwards, ठीक है। तो ये आरबीसी है। और a very important thing about the आरबीसी का सबसे important point, what is the most important point of the आरबीसी? एक तो ये है ही that it carries a protein hemoglobin, and the work of hemoglobin is to bind with oxygen, and it helps in carrying oxygen to all over the body parts or the body organ cells and tissues, ठीक है। ये तो है ही। इसके अलावा is there any point which is very important for the for आरबीसी जो कि आपके एग्जामिनेशन में आता है? यस एनीवन? यस बच्चों, एनीवन? यस, आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा देयर इज वन मोर पॉइंट, कैन यू ऐड दैट पॉइंट की जो पॉइंट है वो कौन सा है कि आरबीसी में और क्या इंपॉर्टेंट है? इट प्रोवाइड टॉक्सिन, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी नहीं है। और कुछ? यस, yes, very nice Shruti Yadav, that it doesn't have nucleus, very nice। okay, जो आरबीसी होता है इट लैक्स न्यूक्लियस, ये आपको याद रखना है। ये 1 मार्क का आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। therefore the another MCQ question, what is the life cycle of RBC? The life cycle of RBC is around 120 days, ठीक है। 120 डेज की आरबीसी की लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसी वजह से इट कैन लिव ओनली फॉर 120 डेज। 120 डेज के लिए वो रह सकता, आफ्टर दैट उसकी डेथ हो जाती है उस सेल की। ओके, तो अगर आरबीसी की डेथ हो जाती है 120 डेज बाद, मतलब आज जो आरबीसी बना है आफ्टर 120 डेज इट विल गेट मीन इट विल डाई ऑफ, then how the RBC, how we maintain a good level of RBC in the body? The question is, if the life cycle of RBC is only 120 days, then how we are able to manage a good count of RBC in our blood? Okay, anyone from the class, or I will explain the answer. Yes बच्चों? Yes, so you could not get the answer. Okay, इसका आंसर ये है कि जो ये मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? हाँ, मैंने ये पूछा था कि हाउ वी आर एबल टू मेंटेन द लेवल। ओके, एक्चुअली इफ एनी आरबीसी, फॉर एग्जांपल 2 million आरबीसी are killed today, die today, then daily 3 times of that are daily being made in our body। हमारी बॉडी में उसकी 3 टाइम्स आरबीसी बनते हैं, इस वजह से वी हैव अ गुड काउंट ऑफ आरबीसी, ठीक है, याद रहेगा। ओके, नाउ विल कम टू द टाइप ऑफ सेल। ओके, सो व्हेन विल सी द टाइप ऑफ सेल, आई एम विजिबल हियर? Yes,
एक मिनट, आपको मिरर इमेज दिखाई दे रही है कि सीधा नजर आ रहा है? I think now it is visible. Okay. Okay. So now if we see the type of cell, okay. So यहाँ से नजर आ रहा है ना? Okay. So yes. Okay. Now if we see the type of cell, okay, the cells are of two types: eukaryotic and prokaryotic. ठीक है? So it is eukaryotic and prokaryotic. Okay, and the cells are classified as eukaryotic and prokaryotic on the basis of nuclei which they have. ठीक है? U means a new type of a good nucleus. Okay, and pro means a primitive nucleus. Okay, so U means a good nucleus. Okay, and a proper nucleus, and pro means primitive type of nucleus, and carrion refers to the nucleus. जो carrion word होता है उसका मतलब है nucleus, and pro means primitive. ठीक है? So, any organism which shows a primitive nucleus will be called as prokaryotic cell, and if a cell has a well-defined nucleus, then it is known as the eukaryotic cell. उसे क्या कहते हैं? Eukaryotic cell कहते हैं. Okay. So let us see some more differences between eukaryotic and prokaryotic cell, और आपको भी eukaryotic और prokaryotic cell के differences अच्छे से पता होने चाहिए. ठीक है? Okay. So अगर if just I make a simple cell, ठीक है, ये एक सिंपल सेल है, एंड आई मेक अ बैक्टीरियल सेल ऑल्सो, ये एक बैक्टीरियल सेल है, और ये हमारी बॉडी का सेल, चाहे प्लांट की बॉडी का कंसीडर कर लो या एनिमल की बॉडी का. ठीक है? एंड इट्स अ बैक्टीरियल सेल. ठीक है? ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल का, एंड जो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल जो है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ठीक है? ये किसका एग्जाम्पल है? यूकैरियोटिक सेल का है. अब इसमें क्या मेजर डिफरेंस आता है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस. जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस का बेसिस होता है. ओके, सो बैक्टीरियल सेल में जो कि प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियस which where the genetic material is not bounded by any membrane. ठीक है? जहां पे जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? ऐसे न्यूक्लियस को हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं. And there is another word for the primitive nucleus. You have to type the name of the word primitive that defines the primitive nucleus. Just type it till I draw the diagram. Yes, that is nucleate. Very nice, Sanya. Okay. False nucleus ne Shruti Yadav and Sanya. Okay, they have answered the first time. They have answered right. Okay. Yes, so nucleoid is the right answer, and nucleoid refers to that type of that type of nucleus where the nuclear material, it is not bounded by any nuclear membrane. मतलब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बैक्टीरियल सेल में, यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल है ये एक्सपैंडेड है, बट इट इज नॉट बाउंडेड बाय, इसके चारों ओर कोई भी आपको मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही है. दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड. क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोइड क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो कि एक यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इट इज प्रेजेंट, इट इज बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर वॉल. ठीक है? तो यूकैरियोटिक मटेरियल में
जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल में, दैट इज बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। वो किससे बाउंडेड होता है? सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। ओके, सो हाँ, वी वर रीडिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक सेल। एनी अदर डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड एनी अदर, you have to write the difference between eukaryotic and a prokaryotic cell, except this point, except the point of nucleus. Yes, I am waiting for the answer, student. Yes बच्चों, प्रोकैरियोटिक सिंगल क्रोमोसोम, वेरी नाइस, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और लिखो, मैं सबके पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठे कर दूंगी। एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि वो पुराने वाले लिंक पे और कौन कौन से बच्चे हैं। ओके, सो हियर, यस, जो अभी आप डिफरेंस लिख रहे हो यहाँ पे कि यूकैरियोटिक सेल आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, इन प्रोटिस्ट, and cell organelles are present in eukaryotic cell. Yes, okay, ठीक है, so whatever answer you have written, मैं एक बार कंपाइल कर देती हूँ सारे आंसर्स को। पहला डिफरेंस न्यूक्लियस को लेके, सेकेंड डिफरेंस जो कुछ बच्चों को ही पता होगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इट हैज 70 S type of ribosome, noted in your copy, very important. Okay, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है? 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो जो राइबोसोम होता है, इट इज ऑफ 80S टाइप। याद रहेगा? ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे दोनों सब यूनिट्स के नाम भी आप लिख लो। 70S में जो दोनों सब यूनिट्स होती हैं, एक्चुअली जो राइबोसोम होता है कुछ इस, अभी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम का। सिंगल राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स। ठीक है, 2 यूनिट्स होती है, एंड दे आर जॉइंट ऑन mRNA. mRNA is messenger RNA, a type of RNA or a type of nucleic acid. RNA के एक तरफ राइबोसोम की बड़ी यूनिट होती है और एक तरफ छोटी यूनिट होती है। ठीक है, सो इफ इट इज अ प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, देन prokaryotic nucleoid, then the ribosome will be of 70S type, and the names of the two subunits here will be, here it will be 60 and 40. ठीक है, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में जो इसके सब यूनिट्स का नाम होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो सब यूनिट्स के नाम होते हैं, दैट इज 60 and 40। अब आपको क्या करना है, प्रोकैरियोटिक का याद रखने के लिए आपको 10 माइनस कर देना उससे। ठीक है, सो 60 का हो जाएगा आपका 50S, एंड 40 में से 10 आप माइनस कर दोगे, तो दिस इज द नेम्स ऑफ द सब यूनिट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, दोनों डिफरेंस आ गया। Then eukaryotic cell, in the eukaryotic cell, since the nucleus has nuclear membrane, similarly well defined other cell organelles are present where the structure are bounded by the double membranes. ठीक है ना, तो membrane bound cell organelles are present in eukaryotic cells and they are absent in a prokaryotic cell. Okay, and what are the names of the membrane bound cell organelles? They can be mitochondria, they can be endoplasmic reticulum, then they can be Golgi apparatus, plastid. Okay, so they all are present in a eukaryotic cell, but in a prokaryotic cell they are absent. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आती हैं, आपको पता भी होना चाहिए। तो ये तो मेजर डिफरेंस थे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे हम बैक्टीरिया का एग्जांपल पढ़ रहे थे, तो बैक्टीरिया के एग्जांपल में if you see the same bacteria is provided by a
whip like long structure, and this one is known as the flagella. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं flagella. ठीक है, ओके. इसी तरह से इन द बैक्टीरिया दे आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर आल्सो प्रेजेंट एंड दे आर नोन एज द सेलाई. ओके, these are required for reproduction as well as they help the bacteria to attach to the surface. ठीक है, तो फ्लैजिला हेल्प करता है इसकी मूवमेंट में, एंड small hair like structures are also present which are known as pili, and they help in reproduction, plus they attach the bacteria to the substratum or to the plant cell or animal cell if it is causing any infection. ठीक है, इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो आके हमारी बॉडी से जुड़ जाता है या प्लांट की एनिमल की बॉडी से, तो उस अटैचमेंट में कौन हेल्प करता है? पिलाई. सिमिलरली ये जो पिलाई है ये इसलिए भी हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में. जब एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है तो वहां पे पिलाई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज कॉन्जुगेशन. उसको कहते हैं, इट इज नोन एज कॉन्जुगेशन. ठीक है, तो ये था सारा बैक्टीरिया के बारे में. ओके, एंड नाउ फ्लैजिला हो गया. इसके अलावा अच्छा, कुछ बच्चों ने डीएनए को लेके भी डिफरेंस बताए थे मुझे, बस ये मैं उसको भूल गई बताना. डीएनए में क्या है कि इसके अंदर इस न्यूक्लियस के अलावा, इन एडिशन टू दिस न्यूक्लियस, बैक्टीरियल सेल और अ प्रोकैरियोटिक सेल also shows an additional circular loop of DNA. ठीक है, इसमें एडिशनल सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए भी प्रेजेंट होती है, यहाँ नहीं, inside. ठीक है, and this is known as, can you name it, anybody? The single circular loop of DNA which is present in prokaryotic cell is known as dash. Okay, whereas it is absent in a eukaryotic cell. Eukaryotic cell में जितना भी उसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है डीएनए के फॉर्म में, it is present inside the nucleus. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये दो होते हैं, यहाँ तो है ही. Okay, the genetic material is present here also, and here another a single circular DNA is present, and the name of this is, इसका नाम क्या है? Who will say? Yes, anybody? बच्चों आप इसको लिखते जा रहे हो ना, आपको जो पॉइंट नहीं आ रहा है समझ में तो आपको उसमें क्विक रिकैप करने में इजी रहेगा. आप एक कॉपी बना लो और उसमें, क्योंकि हम भी बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो एक तरह से रिवीजन ही है ये आपका, सारे टॉपिक्स को बहुत ध्यान से हम नहीं ले सकते हैं. ओके, सो मैंने बताया था कि दिस वन इज नोन एज प्लास्मिड. इसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज प्लास्मिड, एंड दिस प्लास्मिड इट ऑल्सो गेट ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है ना, रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी जो बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, उसमें प्लास्मिड जो है वो हेल्प करता है. एंड प्लास्मिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू ऐड एनी फॉरेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द बैक्टीरिया. ठीक है, या बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन ऐड इफ वी वांट टू ऐड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया in plant and animal, then this plasmid plays a very very important role. Therefore this plasmid is very important tool in the field of genetic engineering. ठीक है, ये बात आई समझ में, क्योंकि ये एक एडिशनल पीस ऑफ डीएनए है होता है इसके अंदर, और इसके अंदर अगर हमें बैक्टीरिया, सपोज करो कि कोई जो बैक्टीरिया है वो हमें किसी फंगस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो हम उसको एज ए एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, उससे एंटीबायोटिक बना सकते हैं. तो इसका जेनेटिक मटेरियल है, हम उसको निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं, और ये सारा जो प्रोसीजर होता है, दिस ऑल प्रोसीजर कम्स अंडर द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है. और एक और स्ट्रक्चर जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है,
दैट इज यू कैन सी सम राउंड स्ट्रक्चर हेयर, ठीक है, कुछ राउंड स्ट्रक्चर जलेबी के जैसा कुछ राउंड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कैन यू नेम इट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? ओके, जब तक ये आप बना कर रहे हो मैं एक और इसकी बाहर एक लेयर बना रही हूँ। कैन यू नेम द स्पाइरल, this spiral, no, this is not chromosome, this spiral structure is known as mesosome, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं मीजोजोम। एंड मीजोजोम आर द स्ट्रक्चर, आप लिख सकते हो मीजोजोम हेल्प इन रेस्पिरेशन, किस चीज के लिए हेल्प करता है वो? रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। एक सेकेंड बच्चों, ओके, कहाँ पे थी मैं? दिस मीजोसोम हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सारा यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस हुआ। नाउ विल मूव टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके। यहाँ पे हम सेल की शेप पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था जो शेप्स ऑफ सेल्स है, इसमें मसल सेल हो सकता है। मसल सेल का शेप क्या होता है? इट इज एलोंगेटेड, ठीक है, एलोंगेटेड होता है। देन हम आरबीसी पे आए थे, ठीक है, आरबीसी ओवल और क्या बताया था आपको? बाइकॉनकेव। देन आपके बुक में है नर्व सेल, ओके। नर्व सेल के डायग्राम में हम नर्व सेल जो देखते हैं, तो नर्व सेल जो है हमको किस तरह से दिखाई देता है? कुछ ब्रांच्ड है, ठीक है, इस तरह से नर्व सेल है। ओके, तो समवॉट लाइक दिस। इसको और डिटेल बनाऊंगी तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर उसका बनता है, मैं उतने में जा नहीं रही हूँ। सो नर्व सेल इट में बी ब्रांच ऑल्सो, ठीक है, तो ब्रांच में लिख सकते हैं। एंड नर्व सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द लॉन्गेस्ट नर्व सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट नर्व सेल कहाँ पर? जो लॉन्गेस्ट नर्व सेल होता है, व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट नर्व सेल? सो द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट नर्व सेल कैन बी, मैम, repeat the function of plasmid. This plasmid is used to transfer the genetic information which is present in one bacteria to another bacteria or to a foreign organism, okay, ठीक है, got my answer? या एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है कैरेक्टर प्लास्मिड, या एक बैक्टीरिया से किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म में अगर ट्रांसफर करने हैं कुछ कैरेक्टर्स, तो ये प्लास्मिड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। यू गॉट द आंसर नाउ, ओके। ये इसमें नर्व सेल की बात करी थी। सो यहाँ पे एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका एमसीक्यू का, दैट व्हाट कैन बी द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ नर्व सेल, ओके। सो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आंसर आप दे रहे हो और शुड आई गिव? Yes, the longest nerve cell can be of 1 meter. Okay, longest nerve cell कितनी हो सकती है? 1 मीटर लंबी हो सकती है। And it is present in human body also. ठीक है, it can be present in human body. पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो सारे nerve cell होते हैं या न्यूरॉन होते हैं वो सब 1-1 मीटर के होते हैं, ऐसा नहीं है। But its length can go up to 1 meter. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ओवम आपका राउंड है। बोन सेल को ओस्टियोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। और स्पर्म जो है, स्पर्म का डायग्राम आपने 8th क्लास में पढ़ा ही था, उसका हेड होता है और उसकी टेल होती है, ठीक है, तो टेपरिंग होता है, ओके। नाउ इफ यू सी द लार्जेस्ट सेल, ठीक है, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सेल, ओके। यहाँ पे फिर अगेन आपके बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। यू हैव टू नेम द लार्जेस्ट सेल and the smallest cell, okay. So the largest cell is the लार्जेस्ट सेल, मैंने लेंथ वाइज तो आपको बता दें नर्व सेल, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि जो अभी तक का लार्जेस्ट सेल मिला है
डायनासोर को हो सकता था, बट डायनासोर अभी है नहीं, तो अभी हम जो एक लार्जेस्ट सेल मान के चल रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, सो यस, ऑस्ट्रिच एग जो है, दिस इज द लार्जेस्ट सेल, और ये अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो आप जस्ट गिव द आंसर, इट इज PPLO। वेरी नाइस सुहानी गुप्ता। So PPLO is pneumonia like organism. Okay, you can write it full form. Pneumonia like organism. They are very small nucleus, though they don't have a cell wall, and then also they are capable of infecting any other organism also. ठीक है, so जो PPLO है दैट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आ जाता है। ओके, अब इसके बाद एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है जो लगभग हर साल आता है, एंड दैट इज, इसका जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो ये होता है कि what happens when a cell is placed in a hypertonic solution, a hypotonic solution and a isotonic solution। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बस मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है ताकि आप इसको खुद पढ़ो, क्योंकि इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 तरह के सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैसे होते हैं, और अगर हम एक सेल को इन तीनों तरह के सेल्स में रखेंगे, so what will be the effect on the cell। तो इसका एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। ठीक है, तो ये आपको वो नहीं करना है, बिकॉज इफ यू गो फॉर दीज टाइप्स ऑफ एग्जाम्स देन एक मार्क्स बहुत मैटर करता है आपकी मेरिट बनाने के लिए। ठीक है, ओके, ये मैंने आपको आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंसेस। ठीक है ना, सो यू हैव योर बुक, आपके पास आपकी बुक है। ठीक है, आपकी कॉपी भी है। मेजर डिफरेंस प्लांट सेल एंड एनिमल में सेल में क्या है, दैट प्लांट सेल जो है, इट हैज सेल वॉल, और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड इज दैट द न्यूक्लियस विद इन अ प्लांट सेल, इट इज जनरली लोकेटेड एट द साइड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट सेल का डायग्राम बनाऊं तो जनरली जो न्यूक्लियस होते हैं वो साइड में होते हैं। ठीक है, ये सेल वॉल हो गई, फिर अंदर एक सेल मेम्ब्रेन बनी। ओके, सो न्यूक्लियस इज एट द साइड, और जो आपका एनिमल सेल है, इसमें न्यूक्लियस कहाँ होता है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है, दिस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये डिफरेंस है। देन आपके जो प्लांट सेल है, इट हैज बिग वैक्यूल्स, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, एंड दे आर लेस इन नंबर। ठीक है, कम होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, द वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड दे आर मेनी। ठीक है, एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो सेंट्रियोल्स से होता है। आप जाके हायर क्लासेस में माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ोगे, वहां पे आप पढ़ोगे सेंट्रियोल्स आर द स्ट्रक्चर्स which are near the nucleus in the animal cell, and it helps in formation of certain spindle fibers, कुछ thread like structures बनाते हैं और जो सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो एनिमल सेल में सेल डिवीजन होता है इससे, सेंट्रियोल्स से, ये याद रखना है। और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ओके, देन प्लांट सेल जो है, एक्चुअली द सेल इज नॉट, आपने ये बताया सुहानी ने कि प्लांट सेल दे आर नॉन मोटाइल। ओके,
सेल तो कोई भी मोटाइल नहीं होता, पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करता है, लेकिन पूरे ऑर्गेनिज्म में अगर एक ही सेल है देन इट कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे सेंट्रियोल्स होता है, जबकि प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होता है दैट इज ड्यू टू सेल प्लेट। वो कैसे होता है, सेल प्लेट से होता है, ठीक है। और एक लास्ट डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस भी है, दैट इज कि जो प्लांट सेल होता है it has green structures in it which are known as the chloroplast। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, और इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू एंड द क्लास हियर। लेट थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी, सो आई एक्चुअली द टाइम इज ओवर, ओके। सो नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड हम इसके आगे से पढ़ेंगे। हालांकि मुझे ये लेसन पूरा फिनिश करना था बट कुछ नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। सो ट्राई टू मेक नोट्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो एंड इस पार्ट को आप पढ़ना। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस वी कैन गो थ्रू दैट, यू कैन आस्क द डाउट, ठीक है बच्चों। ओके, सो लेट फिनिश आवर क्लास। प्लीज मूव फ्रॉम द क्लास सो दैट आई कैन एंड द क्लास। Yes, students, please move from the class so that please leave the meeting so that I can end the class. Thank you, बच्चों. Happy Diwali.